मेरी जान, welcome back to another video. I'm Abhika Yadav. Usually make educational related content and I scored 98.4% in my class 10 CBSE board exams. So जो टिप्स मैंने यूज़ करी थी, whatever I used as hacks, tricks, notes and all the things, you are going to find them in this video. Do not forget to watch it till the end क्योंकि end तक I am going to cover everything like subject wise strategies, the points you need to keep in mind, some favorite areas that CBSE prefer to give more questions from and that you usually neglect studying, and also some pro tips for you. So watch it till the end and do not forget to like, subscribe and share it with your friends ताकि सबके अच्छे नंबर आ सके. So let's begin it without any further ado. सबसे पहले लेट्स टॉक अबाउट इंग्लिश. देखो, इंग्लिश में यू ओनली नीड 6 or 7 days max to complete your syllabus if you haven't started it even a little bit. Okay, max to max 6 to 7 days, not more than that if you do it nicely, है ना. एंड उसके बाद में what you need to focus on is when you're doing poems in English, focus on understanding the poetic devices, rhyming scheme, and the meaning of the literacy devices are the poetic devices that are used there. Because usually तुम लोग ये याद तो कर लेते हो कि ठीक है एलिट्रेशन था, एलिट्रेशन होता क्या है वो तुम्हें पता नहीं होता. सो इट्स बेटर लर्न द पोएटिक डिवाइसेस. आई हैव अ वीडियो ऑन दैट, यू कैन वॉच इट ऑन माई चैनल. Secondly, which is when you are learning chapters, there are some statements being said by the characters in that chapter. So keep them in mind so that whenever you write a 6 mark answer, you can write those so that your answer enhances and it looks better also. These are some tips for English. And for grammar, my notes along with my English notes are there in the description. You can check them out and watch Anurag sir's marathon based lecture. They are the best for grammar. Finally, do not forget PYQs. Also, for letter writing and that analytical paragraph, go for a good vocabulary always. Do not go for simple vocabulary. People usually suggest, but do not go for simple vocabulary if you want, because the first thing is it enhances your answer. Secondly, when you use good vocabulary, the examiner also gets impressed that okay, the student knows thing, and it also creates a better impression because while they're checking the answer sheets in section A, section B, so in a section B only they'll see that okay, the student has good vocab, so I do not need to pay much attention to the details of the answer. So if mistakenly तुमने कोई mistake या कोई मात्रा ग्रामर मिस्टेक हो गई, ग्रामेटिकल मिस्टेक हो गई, तो वो नज़रअंदाज कर देंगे and you'll be saved there. So use this. And also whenever writing answers for passage, write according to the passage given or as per the given passage, क्योंकि ये लिखना ज़रूरी होता है. Always make sure the numbering is right because that is very very important. Highlight section A, section B or the question that you are attempting so the examiner has a clear answer sheet. For Hindi grammar also you can study from Ashish sir, वो बहुत अच्छा पढ़ाते हैं. And my notes are in the description, तो वो उन पढ़ के अच्छे मार्क्स ले आना, ठीक है. Now an example of 6 marks वाले answers in English and हिंदी के जो लॉन्ग आंसर्स होते हैं, दे आर इन द डिस्क्रिप्शन. आंसर शीट ऑफ माइन जिसे मैंने अच्छे से आंसर कर रखे हैं. सो अंडरस्टैंड हाउ वी आंसर क्वेश्चंस विच आर फॉर मोर मार्क्स, how we distribute the answer into 3 parts: intro, main part and conclusion. ठीक है. Now coming on to maths. मैथ्स में सबसे ज़्यादा दिक्कत ये आ रही है कि या तो तुम बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस कर रहे हो फिर भी तुम्हारे नंबर नहीं आ रहे, तुम कितना भी कोशिश कर रहे हो तुम्हारे नंबर नहीं आ रहे हैं एट दी एंड. तो रीस्टार्ट एवरीथिंग, स्टार्ट वॉचिंग द लेक्चर्स अगेन. देखो आलस तो आएगा कि यार ये तो पढ़ा हुआ इतना वापस से पढ़ना पड़ेगा. हाँ पढ़ना पड़ेगा, नंबर चाहिए तो पढ़ना पड़ेगा. गो फॉर ऋतिक सर, गो फॉर शोभित सर. आई वुड प्रेफर ऋतिक सर. सो गो फॉर ऋतिक सर. उनके लेक्चर्स जो मैराथन डेज के लास्ट ईयर के वो देखो, 10 दिन के लेक्चर्स थे उनके, बहुत बढ़िया थे, बहुत इन्फॉर्मेशनल थे, बहुत सारे क्वेश्चंस कराए थे. स्पेसिफिकली वन शॉट्स यूट्यूब पे बहुत सारे अच्छे अच्छे टीचर्स करवा रहे. तो उनसे पढ़ो ना लाडले जाके, मेरी जान से पढ़ोगे जब भी नंबर आएंगे. सो गो एंड स्टडी फ्रॉम देम एंड स्टार्ट सॉल्विंग एग्जाम्पल्स ऑफ NCERT. दे आर रियली इंपॉर्टेंट. नाउ फॉर मैथ्स. देखो अगर तुम्हारे पास बेसिक मैथ्स है, मेरे पास बेसिक मैथ्स थी, स्टिल आई स्कोर 97 क्योंकि आई मेस्ड अप इन द MCQs. आंसर ऊपर नीचे कर दिए, सो येस आई मेस्ड अप देयर. बट आई स्कोर 98 out of 100 इन स्टैंडर्ड मैथ्स इन अ एग्जाम विच वॉज इन माई स्कूल. हाफ ईयरली हुआ था हमारा, स्टैंडर्ड मैथ्स के हिसाब से ही हुआ था. एंड एक प्री बोर्ड मैंने स्टैंडर्ड मैथ्स वाला दिया था स्पेसिफिकली क्योंकि मुझे वो देना था, ठीक है. सो नाउ बेसिक मैथ्स वालों को क्या करना है, NCERT अच्छे से करनी ही करनी है. 2 या 3 बार एटलीस्ट तुमने पूरी NCERT सॉल्व करनी है और उसके बाद में PYQs लगाने जितने पॉसिबल है. और अगर कोई अच्छी रिफ्रेशर है तुम्हारे पास, कोई भी ले सकते हो, RD अभी स्टार्ट मत करना. And do not forget to write the poet's name and the chapter's title whenever you're writing a long answer. And if 2 chapters are being linked in a 6-mark answer, then what you need to do is, like first of all similarities पूछी हैं. First suppose करते हैं अभी के लिए similarities पूछी हैं. Then first you need to write the similarity of this chapter,
then the other chapter. Do not merge things so much that it gets very difficult for the examiner to check, and underline the keywords and the lines that you feel कि ये तो मैंने बहुत अच्छी लिखी है, इस पे तो नंबर मिल ही जाएंगे, उस टाइप की लाइन्स डू नॉट फॉरगेट टू अंडरलाइन दैट सो दैट तुम्हें अच्छे नंबर मिल जाए. सेकेंडली गोइंग ऑन टू हिंदी. देखो अब हिंदी के लिए माई हिंदी वॉज रियली बैड. What language do I prefer to speak? What language am I good in? I have no idea भाई मेरे को कौन सी भाषा अच्छे से आती है, but I can communicate, I guess, so that's fine. हिंदी में the problem that I faced majorly was I always wrote answers but the teacher was like इसमें expression अच्छे से नहीं आ रहा है, भावना समझ नहीं आ रही है, मात्रा की mistake है. मात्रा की मेरी इतनी mistake होती थी, I can't even tell you that. So go for मात्रा सुधारना right now. The first thing that you need to focus on. A channel that I can recommend you is हिंदी अध्यापक by आशीष सर. उनकी वीडियोस देखो, इट वॉज रियली गुड फॉर मात्रा सुधारने के लिए. एंड जो भी चैप्टर समझ रहे हो, जैसे कोई भी कविता समझ रहे हो, तो हिंदी में एक अच्छा फैक्टर ये है कि हिंदी में कुछ सेलेक्टेड क्वेश्चन ही बोर्ड्स में आते हैं, तो वो तुम्हें कब पता चलेंगे, जब तुम PYQs करना स्टार्ट करोगे लाडले. सो यू हैव टू स्टार्ट सॉल्विंग PYQs ऑल्सो. कृतिका में तुम्हें डिफिकल्टी आती है बहुत ज़्यादा. मेरे पास हिंदी A या B थी, कौन सी चीज़ें सोचते थे, जो कृतिका होती है मेरे पास वो थी, मेमोरी जा चुकी है. एंड फॉर मैथ स्टैंडर्ड वाले बच्चे, देखो आपका जीवन ऑलरेडी कठिन चल रहा है क्योंकि आपने स्टैंडर्ड ले लिया है, तो PYQs जितने हो रहे हैं ना अच्छे से सॉल्व करने हैं. और कोई भी अच्छे से रिफ्रेशर ले लो, एजुकार्ट, उस्वाल, अरिहंत, आर्य, साडी, कोई भी जो भी रिफ्रेशर चाहिए तुम्हें वो लो और उससे क्वेश्चन लगाना स्टार्ट करो. नाउ व्हेन यू स्टार्टिंग अ रिफ्रेशर टू सॉल्व इट एट द मोमेंट कि 10-15 दिन बचे हैं, इस तरह की सिचुएशन में यू डू नॉट हैव टू सॉल्व ऑल द क्वेश्चंस. रिफ्रेशर में यूजुअली व्हाट हैपेंस इज एक तरह के 10-12 क्वेश्चंस होते हैं. सो अ स्पेसिफिक टाइप ऑफ क्वेश्चन, सॉल्व 1 or 2 ऑफ देम सो दैट यू गेट अ फेयर आइडिया अबाउट कि इस तरह के क्वेश्चंस में कैसे सॉल्व करना होता है. बस उससे ज़्यादा एफर्ट अभी डालने का समय नहीं बचा है. फोकस ऑन PYQs, फोकस ऑन PYQs, फोकस ऑन PYQs. PYQs के अलावा कुछ नहीं आता हर सब्जेक्ट में, ठीक है. कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन है तो हमारे टाइम में भी थे. यू आर नॉट न्यू टू दिस कॉन्सेप्ट, ठीक है. कॉम्पिटेंसी 2-3 साल से चल रही है. वी ऑल्सो हैड कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन 30-40% आई बिलीव. तो 2-3 क्वेश्चन बढ़ने से नथिंग चेंजेस, क्वेश्चंस और लेवल वही रहता है. सो स्टार्ट सॉल्विंग PYQs. नाउ लास्टली फॉर साइंस एंड देन वील गो फॉर SST. देखो साइंस के लिए अच्छे से NCERT रीड करो. NCERT के येलो बॉक्सेस, जो भी मोर टू नो समरी के बॉक्सेस है, NCERT एक्सरसाइजेज है, एंड स्पेशली द एक्टिविटीज़ वो केस बेस्ड में आती हैं एंड कॉम्पिटेंसी में भी आती है. ये चीज़ अच्छे से सॉल्व कर लो साइंस के लिए, दिस इज इनफ. ऑल्सो डू नॉट फॉरगेट टू सॉल्व NCERT एग्जाम्पलर एंड PYQs. दोनों ऑनलाइन फ्री मिल जाएंगे CBSE की ऑफिशियल वेबसाइट पे भी, एंड एक सेल्फ स्टडीज़ करके साइट है उस पर मिल जाएंगे कम्प्लीटली फ्री ऑफ कॉस्ट, ठीक है. नाउ फॉर SST, देखो SST में मेरी डिटेल वीडियो जिसमें मैंने एक्जैक्टली बता रखा है कि CBSE कहाँ से क्वेश्चंस ढूंढ के बनाती है, विच मे बी आउट ऑफ योर सिलेबस ऑल्सो, सो यू कैन वॉच इट, लिंक इन द डिस्क्रिप्शन. SST में योर मेजर फोकस शुड बी ऑन NCERT, PYQs एंड क्वेश्चन प्रैक्टिस. क्वेश्चन प्रैक्टिस अच्छे से करना. SST में भी सेलेक्टेड क्वेश्चन ही रहते हैं. इफ़ यू ऑलरेडी फाइंड SST डिफिकल्ट, स्पेशली हिस्ट्री या पॉलिटिकल साइंस, देन हिस्ट्री के लिए तो देखो आई वुड गिव द जेनरिक एडवाइस की स्टोरी की तरह समझो, बट द बेटर वे वुड बी कि चीज़ों को टाइमलाइन के हिसाब से समझने की कोशिश करो कि ठीक है पहले ऐसा हुआ, फिर ऐसा हुआ, फिर ऐसा हुआ, बिकॉज व्हेन यू लर्न द टाइमलाइन तो तुम्हारे MCQ में भी हेल्प हो जाती है. एंड लास्टली फॉर पॉलिटिकल साइंस में तो इंटरेस्ट लो बेटा, बहुत अच्छा सब्जेक्ट होता है. इंटरेस्ट लेके कुछ भी पढ़ोगे तो वो आ ही जाता है, इसलिए विद द पॉजिटिव गो फॉर स्टडिंग दी सब्जेक्ट्स. दिस वॉज इट फॉर दिस वीडियो. आई गेस मैंने तुम्हें सारे पॉइंट समझा दिए अच्छे से. एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग टिल द एंड. बहुत बहुत धन्यवाद आपने यहाँ तक देखा. गो फॉर एजुकार्ट, अरिहंत, ओसवाल, जो रिफ्रेशर मिल रही है खरीद लो. रिकमेंडेशन फ्रॉम माई साइड, नॉट स्पॉन्सर्ड. गो फॉर एजुकार्ट और फ्री रिफ्रेशर्स ऑनलाइन आर द बेस्ट, फ्री ऑफ कॉस्ट. चुम्मी. बेस्ट ऑफ लक, बाय बाय.